Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm going to discuss about some concepts related to government budget and the economy. So let's get started. So what do you mean by government budget? Government budget is an annual statement showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें क्या शो किया जाता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर की जो एस्टिमेट वैल्यू है उसे वहाँ पर शो किया जाता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. फर्स्ट वन इज reallocation of resources. Second, reducing inequalities in income and wealth. Third, economic stability. Fourth, management of public sector. Fifth, economic growth. And sixth, reducing regional disparities. Next है components of budget. So there are two components, budget receipts and budget expenditure in a broad level. Okay. In budget receipts there are two receipts. The first one is revenue receipts and the second one is capital receipts. And in expenditure there are two expenditure. The first one is revenue expenditure and the second one is capital expenditure. So the first one is revenue receipts. So what do you mean by revenue receipts? Revenue receipts refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही गवर्नमेंट की असेट को रिड्यूस करती है. ठीक है, ना ही उस गवर्नमेंट की असेट को रिड्यूस करने में कारण बनती है. क्लियर है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स किस तरीके से बताया है ये फिगर जो है, नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, ना तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही ये कोई एसेट को रिड्यूस करती है. जब हम देखो रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट कब मानेंगे? जब हम इन दोनों कंडीशन को, ठीक है, सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब हम एक रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे. क्लियर है? एंड दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. And there are two sources of revenue receipts. The first one is tax revenue and the second one is non-tax revenue. So what do you mean by tax revenue? It refers to sum total of receipts from taxes and other duties imposed by the government. ठीक है, ये टैक्सेस की बात कर रहा है. टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा जैसे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर है? इससे जो टैक्सेस से जो रिसिप्ट्स हैं, सम टोटल टैक्सेस जो सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स किससे? टैक्सेस से या फिर कोई ड्यूटीज़ जो इम्पोज करी है गवर्नमेंट ने, उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की. सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू? इट रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट्स को छोड़ के बाकी जो हैं उनको हम किस में कर देंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू. जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, ये हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट्स? Capital receipts refers to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the assets of the government. ठीक है, ये वो रिसिप्ट्स हैं जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या तो गवर्नमेंट की असेट में रिडक्शन करेगी. क्लियर है? कैपिटल रिसिप्ट्स में हम उसको रिसिप्ट्स कब मानेंगे? जब वो इन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट, तब हम मानेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है. एंड दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. And what are the sources of capital receipts? Borrowings, recovery of loan and other receipts. Clear है? Borrowing क्या है? Borrowing are the funds raised by the government to meet excess expenditure, and recovery of loan, it reduces the assets of the government. And other receipts में आ जाएगा disinvestment and small savings. Next, third है revenue expenditure. So what do you mean by revenue expenditure? It refers to the expenditure which neither creates any asset nor causes reduction in any liability of the government.
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो कोई एसेट को क्रिएट करती है और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। एक एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम तभी मानेंगे जब ये दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, एंड इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। Next is capital expenditure. What do you mean by capital expenditure? It refers to the expenditure which either creates an asset or causes a reduction in the liabilities of the government. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो या तो एसेट क्रिएट करेगा या तो लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। एक एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी मानेंगे जब वो इन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो वो एसेट को क्रिएट करेगा या तो लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। एंड आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो। मैंने इसमें जो टॉपिक मेन टॉपिक है उनको मैंने कवर किया है, और इससे रिलेटेड जो बाकी के जो नोट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और जो आपको समझ में आया है वो आप मतलब आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।